So सबसे पहले आई होप आपको why is resonance happening वो क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आया. In order to attain stability, right? And how is stability achieved? By distribution or delocalization of the charge or delocalization of the pi bond. O3 के केस में there is delocalization of charge as well as delocalization of the pi bond. So overall हमको stability मिला. And उसके बाद हमने when can resonance happen उस क्वेश्चन के लिए the answer is conjugation. Conjugation का मतलब क्या है? If you are having three or more symmetric p orbitals on adjacent atoms, then the system is called as conjugated system. Symmetric p orbitals का मतलब क्या है? एक कार्बन के ऊपर अगर px ऑर्बिटल है तो बाकी कार्बन के ऊपर भी px ऑर्बिटल ही होना चाहिए. अगर py है तो py होना चाहिए, pz है तो pz होना चाहिए. इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमने पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाला. हाइब्रिडाइजेशन में हमने ऐसा कुछ माना if this is sp2 because the number of side atoms are 3 and the number of lone pairs are 0. अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो if I am considering s px and py orbitals in hybridization, the orbital that is left is pz. If this carbon is forming pi bond with this carbon, इसके ऊपर भी pz orbital ही होना चाहिए, तभी इनके बीच में साइडवाइज ओवरलैप होगा. Okay, sideways overlap happens always between symmetric orbitals. px के साथ ही sideways overlap होगा, py के साथ, pz के साथ ही. So इस particular case में pz orbital will be overlapping sideways with pz only. So इसके ऊपर भी pz pure orbital ही रहना पड़ेगा. So ये sp2 है तो इनके हाइब्रिडेशन के अंदर कौन जा रहा है? s, px और py जा रहे हैं. Is this clear? Yes, sir. So the hybrid orbitals of this carbon are in which plane? They are in xy plane. This carbon is forming a sigma bond with this carbon. If these orbitals are in xy plane, इस कार्बन के ऑर्बिटल्स भी xy प्लेन के अंदर ही रहना पड़ेगा, तभी जाके इसके साथ हेड ऑन ओवरलैप होगा ना. If they are present in a different plane, the chance for the head on overlap decreases. होगा नहीं. So इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी xy प्लेन में ही होना चाहिए. So इसका हाइब्रिडाइजेशन भी s px और py होगा. If it is forming s px and py, the pure orbital that is left is pz. अगर ये pz रहा तो ये इसके साथ pi bond बना रहे. This orbital also has to be pz, and only there will be sideways overlap which leads to pi bond. So in all these atoms, the hybridization is sp2 and the pure orbital that is left is pz orbital. So this particular system is a conjugated system. Once you have conjugated system, there can be jumping of electrons from one orbital to another orbital because all the orbitals are parallel, मतलब side by side है, और the capacity of each and every orbital is maximum of 2 electrons. So यहाँ पे electron यहाँ पे jump कर लेगा. So ये सब हम क्यों draw किया? To explain how the resonating structures are formed. Okay. So यहाँ से electron यहाँ पे jump किया तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर empty हो जाएगा या electrons are lost. So on this carbon you will be having a positive charge. And इस कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, so इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. How to show that? ये जो pi bond है, it is converting into negative charge on this and it is converting into positive charge. नेक्स्ट केस में हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप किया, उसके वजह से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा ये है. बट हमने और एक पॉइंट भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा. whenever there are more charges inside the system, it will lead to instability. We are explaining resonance in order to explain the stability of the molecule. But as this structure is leading to instability of the molecule, we usually omit this resonating structure. और इसका contribution almost zero होगा resonance hybrid में. Okay, so we won't be showing this structure. We can directly show. यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव बनेगा. So ये वाला स्ट्रक्चर शो करेंगे. Okay. So आपको ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाया मैंने 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए. पहले राइट हैंड साइड ब्रेक किया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक करते हुए गया. ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड में द पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन और इन बिटवीन ऑल द कार्बन एटम्स एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स व्हिच आर न्यूट्रल विल बी हाईएस्ट. The contribution of these structures which are having greatest number of charges will be least.
ये भी थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूट करेंगे, बट इसके कंपैरिजन में जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कंट्रीब्यूशन कम रहेगा. ओके, सो ओवरऑल इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में पाई बॉन्ड हर किसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी मोर व्हेन कंपेयर्ड टू द कॉन्सेंट्रेशन हियर, because this is contributing the most to the resonance hybrid. Okay, so bond order of X and Z will be greater when compared to the bond order of Y. Any doubt? No, Any doubt? No. Okay. So आपको फाइनली वो जो conjugating systems दिया मैंने, those are the final possible systems. अगर आपको एनालिसिस करना है तो you can do the analysis by getting their hybridizations and by seeing if there are any parallel p orbitals or not. अगर parallel p orbital रहा, then definitely there will be resonance. Okay, so पहले हम जो है we are trying to see all possible conjugating systems where there can be resonance. ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि बार बार हमको हाइब्रिडेशन निकाल के सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है कि नहीं चेक करके तब जंप करेगा करके. We won't be doing that. We will list out all possible systems where there can be resonance or all possible conjugating systems. The first system we have identified is pi alternate pi. ये जो system है pi alternate pi alternate pi. Okay. So in this case, the hybridization of all the carbon atoms is sp2 and इसके ऊपर pz है तो सबके ऊपर pz ही रहा. So whenever you have parallel p orbitals, the electrons will jump from one orbital to another orbital, leading to resonance. So ये जंप करते हुए आपको दिखाया, डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. ये यहाँ से यहाँ पे जंप किया तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. उसके बाद डायरेक्टली हमने ये यहाँ पे ट्रांसफर किया, ये यहाँ पे ट्रांसफर किया, सो ऑन सो फोर्थ, वी गॉट बैक द ओरिजिनल स्ट्रक्चर. अब हमने इसके ऊपर ब्रेक किया, वी कैन ऑल्सो ब्रेक ऑन दिस कार्बन. सो दीज आर अनदर सेट ऑफ पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. Out of all these structures, these two structures will be contributing to the most in the resonance hybrid because these are neutral. बाकी सब में चार्जेस आ रहे हैं तो दे आर रिलेटिवली लेस स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू दिस टू. सो ये दो का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा एंड बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट. सो इसके हिसाब से दोनों का आधा कर लिया, 1 + 2 / 2. You got this structure. Hence in benzene we usually represent it as a ring, उसके अंदर सर्किल. The circle indicates delocalized electrons, delocalized pi electron cloud. Okay, any doubt यहाँ पे किसी को भी? No, sir. समझ में आया? So इसको और एक वे में शो किया आपको. There is benzene ring. The benzene ring ये plane of paper के perpendicular में रहा. Okay, the benzene ring is perpendicular or it is half of it is going into the plane of paper and half of it is coming out of the plane of paper. So ये जो plane है, अगर आप लोग xy plane मान लिया तो the benzene ring is present in xz plane. Okay, so जो z axis जो है ऐसा रहेगा. So all the pz orbitals are represented here. So all the pz orbitals are parallel. As they are parallel, there is a chance for resonance. So electrons जो है यहाँ से jump करते हुए सारे electron clouds merge हो गया. So you have formed a circular pi electron cloud here. ऊपर एक ऐसा रहेगा, नीचे भी एक ऐसा रहेगा. This is called as Hayward projection. Any doubt in this? Understanding this? Okay. इसके बाद हमने next system देखा pi alternate positive. So whenever you see pi alternate positive in any molecule, you can clearly say there will be resonance there, and there will be achievement of stability. So यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है. If I am taking this pi bond in resonance, so pi bond जब यहाँ पे लेके आऊंगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. That structure we won't be representing because it has lot of charges. क्या करेंगे, ये यहाँ पे लेके आते समय ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बना दो, सो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे ये यहाँ पे लेके आते समय यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा आइडियल केस में. बट क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना दो. Any doubt how we are forming these structures? Any doubt? No, sir. No, sir. Okay, very good. उसके बाद next conjugating system is pi alternate negative. Pi alternate negative.
So whenever you see pi alternate negative, सबसे पहले आपको ये माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है इसमें रेजोनेंस होगा. I am trying to explain you why in this case resonance is happening. Suppose if you are taking the hybridizations, ये sp2 ये sp2, अगर नॉर्मली इसका हाइब्रिडेशन निकाला तो हम एक्सपेक्ट करेंगे sp3. But if you are making that as sp3, there is no symmetric p orbital on this carbon to participate in resonance with this. रेजोनेंस की वजह से हमको स्टेबिलिटी मिल रहा है ना. So don't keep that negative charge. Negative charge is nothing but 2 electrons. Don't keep those 2 electrons in the hybrid orbital. Rather than that, place these electrons in the pure orbital. And इसके सिमेट्रिक में जो भी ऑर्बिटल रहेगा उसके अंदर रखना. उसका वजह से फायदा क्या होगा, रेजोनेंस में ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. एक कार्बन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट होने से बेटर होगा 2 कार्बन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना. Hence, in order to achieve stability, I am making the hybridization of this carbon as sp2. किस को ये वाला पॉइंट समझ में आया? हाँ सर. ओके, अगर sp3 जैसा रखा तो पैरेलल p ऑर्बिटल के अंदर रहा ही है नहीं है, सो वो जंप नहीं कर पाएगा. sp2 जैसे रख रहा हूँ, प्योर p ऑर्बिटल में रख रहा हूँ. अगर इसके ऊपर pz बचा तो ये pz के अंदर ही रखना. इसके ऊपर px बचा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स px के अंदर रहेगा. ओके, so pi alternate negative charge is the third system for resonance. So और एक सिस्टम देखते हैं. Next system. There are in total you have 6 different systems. हमको सारे देखना है. Fourth system, pi alternate odd electron. Odd electron मतलब in case of free radical. Pi alternate odd electron. Example, I am taking allyl free radical. What is meant by allyl carbon? CH2 CH2 minus. Allyl carbon, the carbon that is attached to double bonded carbon is called as allyl carbon. So ये जो कार्बन है इसको allyl carbon बोलते हैं हम. इसके ऊपर odd electron मतलब free radical. Okay, इसके ऊपर free radical रहा तो it is called as allyl free radical. इस केस में हमको करना कैसे? Whenever you have free radical in the system and whenever you are showing the resonating structures, always break the bond as a free radical. मतलब क्या है, you need to have homolytic fission. इसको एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन जाएगा. ओके, इनिशियली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में बॉन्ड बना है. नाउ फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. बनेगा क्या? यू विल गेट CH2, यहाँ पे फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2. एनी डाउट? Any doubt? No, sir. इसको कैसे दिखा सकते हैं? Everyone, please concentrate here. Carbon, carbon, carbon. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, एंड इधर भी वही है, कुछ चेंज नहीं है. एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व. इनिशियली द बॉन्ड इज बिटवीन दीज 2. अब क्या हो गया? बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन गया बस. You can either form bond between these 2 or form bond between these 2. ऐसा रहा तो ये स्ट्रक्चर होगा, ऐसा रहा तो ये स्ट्रक्चर होगा. What will be the hybrid? इसमें हाइब्रिड शो करना मुश्किल है. ये जो पाई बॉन्ड है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बाय 2 जैसे नहीं लिखेंगे. ठीक है, so we won't be mentioning the resonance hybrid. We won't be showing the resonance hybrid. Is this clear?
सर या टेल मी। सर वो जो आपने सेकंड वाला लिखा है उसमें वो CH और CH2 में पाई बॉन्ड कैसे बना? क्या किया मैंने, बॉन्ड ब्रेक किया। हाँ, बॉन्ड इज नथिंग बट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना सकता हूँ ना। हाँ, सो वही किया, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना के ये स्ट्रक्चर लिखा। यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, इधर यू कैन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन दीज टू और फॉर्म बॉन्ड बिटवीन दीज टू। नेट रिजल्टमेंट में क्या होगा, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अपने आप में मिल जाएगा। समझा? हाँ सर। एनी अदर डाउट? नो सर। Okay, I will give you a system. Please tell me how to analyze the resonance happening inside it. Pi alternate lone pair. LP indicates lone pair. I will give you an example. Explain how exactly resonance happens inside this NH2 lone pair. Tell me the hybridations of all the atoms. sp2 sp2 और sp3। sp2 sp2 and sp3। sp2 sp2 and sp3। गुड, आपको ये तो बताना चाहिए। This is sp2 sp2 sp3। Whenever you have organic molecules, देख के ही हम hybridization कैसे बताएंगे। If carbon is forming one pi bond sp2, 2 pi bonds sp, all of them sigma bonds, it will be sp3। अभी यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। उस 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जा रहे हैं? 3। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचा? 2। सो लोन पेयर्स में कितना हुआ? 1। What are side atoms? Nothing but number of bond pairs. कितना है? 3 है। So what are the total number of electron pairs? 1 4। plus 3, which is equals to 4. Okay. If you are keeping the lone pair in the hybrid orbital, can that lone pair jump into these orbitals? No. No, right? No. If it is jumping into these orbitals and if it is getting distributed, मतलब ये जो lone pair है, नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन्स भी कंट्रोल करने लगा उसको, बेटर होगा सिस्टम या थोड़ा इनस्टेबल होता जा रहा है? इनस्टेबल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन भी कंट्रोल कर रहे, तो अच्छा ही है ना। डीलोकलाइजेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर कार्बन भी कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कार्बन कंट्रोल करना मतलब कार्बन के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन। न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। Electrons, whenever they are interacting with positive charge, always stability is achieved. So what we will do is, rather than keeping the electrons in the hybrid orbital, lone pair in the hybrid orbital, place that in the pure orbital. If you are placing that in the pure orbital, आपको इसके लिए भी मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन है। If you are placing that in the pure orbital, again it will be in symmetric orbital. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। होगा क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करवाओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां पे जंप करवाओ। What will happen? ऐसा कुछ बनेगा? यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 1 आएगा।
Okay. हाँ सर. In the process only, shift the electron from here to here. यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया तो what will be the structure? एक मिनट. सर ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर शो किया है क्या? हाँ, वो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर शो किया 2 electrons and I'm keeping that lone pair in the pure orbital. हाँ सर. तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. इसका मतलब क्या है? Make the bond between these two. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया. Everyone, how to draw the structure of that? एक बार ऑब्जर्व करो. CH2 double bond, CH bond NH2. क्या कर रहा हूं मैं? I am giving it here. अभी ये जो बॉन्ड है, as कार्बन cannot form 5 bonds, ये यहाँ से यहाँ पे जंप किया. So this will lead to the structure CH2 नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH2. नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको लूज किया ना, सो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा. एनी डाउट? No sir. नो सर. ओके, ये इसके लिए है. इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए नेगेटिव, ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना इसलिए 5 बॉन्ड. एंड नाइट्रोजन अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव आया. ओके, टू गेट बैक द ओरिजिनल स्ट्रक्चर फिर से क्या करेंगे? ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा. क्लियर? यस. Okay, and out of these 2 structures, which will be contributing highest to the overall resonance hybrid? फर्स्ट Which वन. one? First structure, because इसके अंदर charges आ गया. Very good. Draw the resonating structures for this molecule. CH3, CH2 double bond, CH bond, O bond, CH3. Draw the resonating structure for this molecule. इस केस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो है, इट इज फॉर्मिंग 2 bonds. What are the number of outermost electrons of oxygen? 6. 6. Out of एक those lone 6 pair. electrons, only 2 electrons are participating. Lone pairs कितना हुआ? 4. 4. So यहाँ पे lone pairs तो 2 ही है. Sir. Lone pairs 2 है, total electrons are 4. Tell me the hybridizations एक बार. आप लोग को जितना समझ में आया मैं सोचता हूँ. Tell me the hybridizations. sp2 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 sp3 sp2. डोंट मेक दिस एज sp3. वही बता रहा हूं मैं, इसको भी sp2 ही रखेंगे. sp3 कर दिया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर चला गया, सिमेट्रिक ऑर्बिटल में नहीं रहेगा ना. हाँ हाँ हमको डिस्ट्रीब्यूट करवाने का चांस है तो कर लेंगे. एंड डोंट मेक दैट एज sp आल्सो, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल पैरेलल में रह सकता है ना इसका. दोनों तो पैरेलल में नहीं रह पाएगा. हाँ सर.
So there is no point of keeping both of them in unhybrid orbitals. We will keep only one lone pair in the unhybrid orbital, which is parallel to this. Okay, so sp2 करेंगे. And how to show the resonating structure? ये जो lone pair है bond बना, ये जो bond है break होके इसके ऊपर गया. So this will become CH2, यहाँ पे negative bond CH double bond O CH3. ऑलरेडी इसके पास एक lone pair है ऊपर पॉजिटिव. एनी डाउट? वापस कैसे आ जाएगा? ए यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा. ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये तो हाइब्रिडेशन इसका तो sp3 ही है. इस कार्बन का, इसका तो कुछ चेंज नहीं है, sp3 ही है. एनी डाउट? नो सर. No, sir. लास्ट केस. lone pair and positive charge on adjacent atoms. Lone pair and positive charge on adjacent atoms. Example, CH2 positive bond O bond CH3. Okay. Again, you have a lone pair, two lone pairs on this oxygen. If I am giving this lone pair to this carbon, क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, सो इसके ऊपर पॉजिटिव बॉन्ड CH3. Will this be the resonating structure? Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है ना एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ सर. सर CH2 पे नेगेटिव आएगा ना एक चार्ज. ऑलरेडी उसके ऊपर पॉजिटिव है ना, सो नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन होकर न्यूट्रल हो जाएगा. पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना सर, तो फिर 2. 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दिया? एक इलेक्ट्रॉन. देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा एवरीवन, वैसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये तो मतलब एक CH3 इलेक्ट्रॉन कार्बन को और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ऐसे. हाँ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ही है. What is meant by positive charge? There are no electrons in that orbital. Lone pair का मतलब क्या है? 2 electrons. यहाँ पे 2 electrons है, दोनों electrons उस ऑक्सीजन का ही है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ही इसको दे रहे हैं अपूर्वा. हाँ सर. So if it is giving only 1 electron, now the oxygen is having 1 electron and the carbon is also having 1 electron. So दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, so दोनों को बॉन्ड बनाओ दोनों के बीच में. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, which will be this. बट ऑक्सीजन अपना खुद का इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया. इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज सिमिलर टू बैक बॉन्ड, सिमिलर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसके ऊपर लोन पेयर है, इसको पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे दिया. यही तो होता है ना. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंगल बॉन्ड एंड चार्जेस, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन होकर 0. समझा? हाँ सर. Out of these two structures, which will be the highest contributor for the resonance hybrid? सेकंड वन. Second one. Very good. तन्मय क्यों? Why not this? उसमें इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के और ऑक्सीजन दोनों के पास है, और पहले वाले में सिर्फ ऑक्सीजन के पास है. ऐसा तो बोल सकते हैं, सही है. इसके साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है सेकंड स्ट्रक्चर में. यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? कार्बन इज फॉर्मिंग 3 bonds, so your कार्बन हैज ओनली 6 electrons. यहाँ पे देखो कार्बन 4 bonds बनाया, so 8 electrons हुआ. ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पे भी कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oxygen's octet is complete here as well as here. Okay.
बट यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ. So this structure is very much significant contributor to the resonance hybrid when compared to this structure. समझा? हाँ सर. Everyone, हाँ सर. this is octet completed structure. So इस केस में रेजोनेंस बहुत मतलब डेफिनेटली होगा, एंड द पार्टिसिपेशन इन रेजोनेंस इज हाईएस्ट बिकॉज इट इज अचीविंग स्टेबिलिटी. ये जो दो ऑर्बिटल्स है ना, इसका ऑर्बिटल इसका ऑर्बिटल मर्ज हो जाएगा. ओके, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा. क्लियर? यस सर. सर ऑक्सीजन में हम फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं क्या इसमें? फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का इंक्लूड किया, आउटरमोस्ट शेल का ही इंक्लूड किया. ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6 है ना. आउट ऑफ दो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 electrons are participating in bonding, 4 electrons are left, which are 2 lone pairs. हाँ हाँ सर, मुझे लगा वो डबल डबल बॉन्ड है. नहीं. Okay. So what are the all possible resonating systems? Everyone, once again, what are the all possible resonating system? Pi alternate, pi alternate positive, pi alternate negative, pi alternate odd electron, which is nothing but free radical, pi alternate lone pair, positive और नेगेटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम्स. अल्टरनेट नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट एटम्स के ऊपर है. ओके, यही 6 सिस्टम्स है. एवरीवन वंस कंसंट्रेट हियर. पहला सिस्टम पाई अल्टरनेट पाई. देखो, पाई अल्टरनेट पाई, पाई अल्टरनेट पाई, अल्टरनेट पाई, अल्टरनेट पाई. इसमें बहुत बड़ा सिस्टम है, कंटिन्यूस है. यहाँ पे पाई अल्टरनेट पॉजिटिव, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव. सो इसमें रेजोनेंस हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस हुआ. पाई अल्टरनेट नेगेटिव, पाई अल्टरनेट नेगेटिव. ओके, रेजोनेंस यहाँ पे हुआ. वैसा ही पाई अल्टरनेट नेगेटिव, रेजोनेंस यहाँ पे हुआ. पाई अल्टरनेट ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई अल्टरनेट ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई अल्टरनेट लोन पेयर, पाई अल्टरनेट लोन पेयर. लोन पेयर बीइंग हायर डेंसिटी यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं. ओके, शिफ्ट ऐसा किया हमने. ओके, पाई लोन पेयर अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, लो डेंसिटी हायर डेंसिटी. सो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया. लोन पेयर अल्टरनेट नहीं, लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम्स. अल्टरनेट जैसा भी बोल ही सकते हैं, लोन पेयर अल्टरनेट पॉजिटिव. ओके, यस सर. so I will give you 2 compounds. Draw all possible resonating structures. Okay, draw the resonating structures of following. Draw resonating structures of following. CH2 double bond, CH bond, CH double bond, CH bond, CH2 positive, CH2 double bond, CH bond, CH double bond, CH bond, CH2 negative. Draw all possible resonating structures जो stable है. If there are more chances inside the system,
no need to show that particular structure because it is leading to instability. आ रहे क्या ड्रॉ करना? हाँ सर। हाँ सर, ए का हो गया। सर Okay, आप good. नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद ये पता चलेगा मुझे। अभी ऐसे देख के 3 स्ट्रक्चर्स, इसको मिला के 3 स्ट्रक्चर्स हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। including this. You need to और show the flow second, of electrons from higher density to lower density. हाँ सर सेकंड के लिए भी 3 होंगे थ्री ना? आता है। सेकंड के लिए भी 3 होंगे, बिल्कुल Yes. सही। सो कर लेंगे यहाँ पे एक बार एवरीवन। अब जो आप लोग किए होंगे, सो ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करो। व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग इट, नेगेटिव पॉजिटिव आमने सामने दिख रहे हैं, सो दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो। ओके, सो इट विल लीड टू दिस स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CS CH, पॉजिटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव बॉन्ड यस। CH डबल बॉन्ड CH2। CS। नेक्स्ट सर, में ये यहाँ से यहाँ पे आया। हाँ। उस प्रोसेस में डोंट शो मोर चार्जेस, सो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सो हाँ इट इज CH2, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, बॉन्ड डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इफ यू ऑब्जर्व, वो जो पॉजिटिव चार्ज है किन कार्बन के ऊपर आ रहा है? किस किस कार्बन के ऊपर? दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। इन कार्बन के ऊपर आया क्या? नहीं। नहीं। आया ना। सो इफ आई फॉर्म द रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 bond CH bond CH bond CH bond CH2, पॉजिटिव चार्जेस आपको इस कार्बन के और इस कार्बन के ऊपर, ये 2 कार्बन के ऊपर नहीं है। आई होप एवरीवन कैन सी दैट। पाई बॉन्ड देखो,
यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, सब जगह पे है ना। सो बट सब जगह पे है, दे मे नॉट बी द इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर्स। सब एक जैसा है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, नहीं। एक जैसा तो नहीं है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, यहाँ पे है, so obviously they are not equal contributors. So as of now we will not comment on किसके बीच में pi bond की डेंसिटी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ओके, नो नीड टू कमेंट ऑन दैट। वी विल बी सिंपली मेंशनिंग और pi bond की डेंसिटी सब कार्बन्स के ऊपर है, एंड पॉजिटिव चार्ज भी हर किसी को कितने मिलेगा वो भी इसके ऊपर भी हम कमेंट नहीं करेंगे। वी विल सिंपली शो सम पॉजिटिव चार्ज। I am using symbol delta, but it is not partial, okay? It is significant amount. I hope this is clear. Yes. Okay, this is significant positive charge. Significant amount of charge. Okay, so इस केस में what is the conjugating system? First of all, negative, alternate, pi, alternate, pi. बोल सकता हूँ इसमें conjugating system क्या है? Pi, alternate, positive. Okay. सो यहाँ पे नेगेटिव डेंसिटी ज्यादा है, सो यहाँ पे आएगा कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकते हैं, सो आपको ये ब्रेक करना ही पड़ेगा, विच विल लीड टू CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, इसके ऊपर नेगेटिव, एंड इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया CH2। एनी डाउट? ऐसा ही बनाया क्या आपने? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट ये जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, यहाँ पे जाएगा। So this will be CH2, इसके ऊपर नेगेटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH bond CH double bond CH2. Again, what will be the resonance hybrid? Carbon, 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 5 बॉन्ड सबके बीच में आ रहा है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। एनी डाउट? नो सर। यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन में शो करना है CH2, CH2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। Can you tell me, by looking at the resonance hybrid, can you tell me the base, another difference between inductive effect and resonance? Inductive effect is up to third carbon. But Very good. in resonance, we can't define any limit. Very good. And in inductive effect, the charges are continuous also. एक कार्बन के बाद कंटिन्यूस कार्बन के ऊपर है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं ना, कुछ कार्बन के ऊपर है, कुछ कार्बन के ऊपर नहीं आ रहा है। ओके, वेरी गुड। एंड इन इंडक्टिव इफेक्ट एज यू गो अवे द चार्ज गेट्स डिमिनिश्ड, यहाँ पे वो भी जरूरत नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसके ऊपर चार्ज ज्यादा रहेगा, कम कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उसके ऊपर चार्ज कम रहेगा, राइट? Yes sir. Good, very good. So we will explore such points more and more later. अभी और एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, you need to draw all possible resonating structures. Okay? Yes. Okay. Draw resonating structures for this particular molecule. First, identify the resonating system and draw the resonating structures.
सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, इसका ही रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया था। आई एम आस्किंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर दिस मॉलिक्यूल। किया क्या ड्रॉ? नहीं सर, कर रहे। ओके, लेट मी नो whenever you are done. सर हो गया। ओके, व्हाट इज सर द 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं क्या? ओके, 4 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, देखते हैं। आदित्य ने, शिवदत्ता ने कहा क्या ये? हाँ सर। हाँ, शिवदत्ता, देखते हैं। व्हाट इज द रेजोनेटिंग सिस्टम यू आर कंसिडरिंग? लोन पेयर, अल्टरनेट वन पे। पाई लोन। लोन पेयर, Alternate. अल्टरनेट पाई, अल्टरनेट पाई, अल्टरनेट पाई, ये कर रहे हैं क्या आप लोग? हाँ I'm हाँ सर, asking लोन again, what is the resonating structure, resonating system you have considered? ये है क्या? लोन पेयर, अल्टरनेट पाई, अल्टरनेट पाई, अल्टरनेट पाई, ये कंसिडर किया आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। सो ये यहाँ से यहाँ पे गया, तब क्या किया आप लोग? कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकते, सो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके एस के ऊपर किया। हाँ। ओके, गुड देन, सो दैट विल लीड टू नाइट्रोजन यहाँ पे, ऐसा कुछ। ये आके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप लोग क्या किया? ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, विच विल लीड टू यहाँ पे ये आके यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सो लास्ट में आप लोग किया क्या है? ये यहाँ पे आया, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसा हो रहे, तो it will convert back into this structure, नाइट्रोजन, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो गया? न्यूट्रल हो जाएगा। आप लोग ने यही बनाया ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अगर इन केस आप लोग ने ये बनाया तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रॉन्ग, समझ में आया?
ये रॉन्ग है, आप लोग ये बनाया होगा। सब लोग ने यही बनाया, आदित्य, शिवदत्ता, चैतन्य, तन्मय, अपूर्वा। नो सर, मेरा हाँ थोड़ा सर, ये डिफरेंट है। अमितराज, तुमने ये नहीं बनाया क्या? नहीं, मेरा आई ओके, थिंक सर मेरा भी रॉन्ग ही है, बट ये नहीं पता है। ये नहीं बनाया, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस इट। एक बार कोशिश करते हैं क्यों गलत है। एवरीवन, tell me the hybridizations of all the atoms present. Tell me the hybridizations of all the atoms. What is the hybridization of this carbon, this carbon, this carbon? ये नाइट्रोजन का hybridization, इसका hybridization और इसका hybridization. Tell me the hybridizations of all these atoms. कार्बन का sp2 और नाइट्रोजन sp3। कार्बन का sp2, ओके, sp2। कार्बन का तो किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना, it is forming only one pi bond, so it has to be sp2। नाइट्रोजन के outermost electrons कितने हैं? 5। आउट ऑफ दोस 5 इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्डिंग में गया? 3। ओके, उसके 5 में से 3 गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहा, सो विच इज नथिंग बट 1 लोन पेयर, जो नाइट्रोजन के ऊपर आपको दिख भी रहे। साइड एटम्स कितना है? 2। सो देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स, सो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना हुआ? 3। सो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? sp2 ना? Okay, so this nitrogen is also sp2. This nitrogen is also sp2. Okay, let us try to show this structure with few more details. नाइट्रोजन है, यहाँ पे बॉन्ड है। मान लेते हैं ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से sp2, मतलब मान लेते हैं s, px और py पार्टिसिपेट किया। इफ दिस इज बॉन्ड फॉर्मिंग ए पाई बॉन्ड विद दिस, इसके ऊपर प्योर ऑर्बिटल कौन सा बचा? pz। if this is forming a pi bond with this will also have pz as p orbital. So hybridization में कौन कौन गया? s, px and py. So this carbon is having its orbitals, hybrid orbitals in xy plane. So ये वाला कार्बन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे, तो इसका ऑर्बिटल्स भी किस प्लेन में होना चाहिए? xy प्लेन में। सो इसके ऊपर भी pz बचा, इसके ऊपर भी pz बचा। अभी ये नाइट्रोजन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे, ये xy प्लेन है तो sp2, इसका भी क्या होना चाहिए? xy प्लेन में ही होना चाहिए। सो इसके ऊपर pz बचा, अभी ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहे, सो इसके ऊपर भी क्या बचेगा? pz। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। So I am showing the pz orbitals which are present on all the atoms. So यहाँ पे एक है, इसके ऊपर एक pz है। Everyone observe carefully. ये pz है, ये pz है, इसके ऊपर भी pz तो है। ओके, सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज फॉर्मिंग ए पाई बॉन्ड विद दिस। अभी हमने लोन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं किया, यहाँ पे हम प्योर pz ऑर्बिटल में जो भी रखा इलेक्ट्रॉन, that electron is forming a pi bond with the adjacent carbon atom. So where will I keep the lone pair? I will be keeping the lone pair in the sp2 hybridized orbital. Everyone remember this. As this nitrogen is forming a pi bond with this carbon atom, I should definitely have an electron which is present in pz, then only it will form a pi bond with this carbon atom. ये point clear है?
सर सभी लोग, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स। इस कार्बन के अंदर pz में है इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के अंदर भी pz में ही रहना पड़ेगा, तब जाके ये साइडवाइज ओवरलैप होगा। एक्सेप्ट? विल यू एक्सेप्ट दिस? यस सर। Yes, sir. Okay, so if you are keeping the electron in this pz orbital, लोन पेयर कहाँ पे रहेगा फिर? लोन पेयर तो इस प्लेन में नहीं है ना। So the lone pair you are keeping this in sp2 hybridized orbital. So जो lone pair है, it is present in hybrid orbital का shape यही होता है ना, sp2 hybridized orbital which is present in xy plane। ये xy plane है। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनार। समझ में आ रहा है? सर हाँ बताओ। सर लेकिन वो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्यों रखा? लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसलिए रखा क्योंकि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल रखा तो ये ट्राइगोनल प्लेनार होगा। हाँ एवरीवन, ट्राइगोनल प्लेनार होगा तब बॉन्ड एंगल कितना आएगा? द बॉन्ड एंगल विल बी द बॉन्ड एंगल विद द लोन पेयर विल बी 120 डिग्रीज। हाँ इफ यू आर कीपिंग द लोन पेयर, एवरीवन एक बार एक क्वेश्चन अपने आप सोचते हैं। सोचो, इफ आई एम कीपिंग द लोन पेयर इन प्योर ऑर्बिटल, सभी लोग, if I am keeping the lone pair in pure orbital, what should be its hybridization? sp? sp3 3। sp3 क्यों होगा? if I am keeping the lone pair in pure orbital, hybrid orbital में नहीं रख रहा हूँ। अगर दो साइड एटम्स है, दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए तब हमें। एक तो इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज डन विद प्योर ऑर्बिटल्स, सो एक इलेक्ट्रॉन तो प्योर ऑर्बिटल में रखा, लोन पेयर को भी प्योर ऑर्बिटल में रख रहा हूं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना ही लगेगा? दो ही लगेगा ना फिर। सो हाइब्रिडेशन विल बिकम sp ओनली। हाँ हाँ समझ में नहीं आया ना? नहीं सर। और ये जो मतलब इस देखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल टू द टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यस अभी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना है? 3 हुआ है, इंक्लूडिंग ए लोन पेयर। You are asking to keep the lone pair in the pure orbital but not in the hybrid orbital. तब कितना हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 2 ही हुआ ना। 2 के लिए हाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 ही लगेगा, तब sp करेंगे। sp3 क्यों करेंगे? हाँ सर समझा। sp हुआ तो क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। हाँ sp लीनियर मतलब क्या होगा? ये बॉन्ड जो है यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ करना पड़ेगा आप लोग को। ये स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट। समझ में आ रहा है? यू हाँ नीड टू शो द बॉन्ड एज नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे स्ट्रेट। ओके, यहाँ पे एक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फिर से स्ट्रेट है। ओके, यू नीड टू शो समथिंग लाइक दिस, बुलेट जैसा बन गया। ओके, एंड वो जो लोन पेयर है, यू आर सेइंग दैट कीप द लोन पेयर इन द प्योर ऑर्बिटल। सपोज s और px मिलाया, सभी लोग ध्यान से सुनना, आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। s और px मिलाया, वो जो ऑर्बिटल्स किस प्लेन में रहेंगे? इट विल बी प्रेजेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। यस आई एम टेकिंग दिस एज एक्स एक्सिस। सो इसका जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इट इज प्रेजेंट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इसके साथ बॉन्ड बना दिया। y ऑर्बिटल क्या कैसे रहेगा? py, इट विल बी परपेंडिकुलर टू x, सो परपेंडिकुलर टू x ड्रॉ किया मैंने। ओके, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, एज यू सेड, आई एम कीपिंग द लोन पेयर in the pure orbital. Now what is the angle between the lone pair and the bond pair? 90 90 degrees. If I 90। am making the hybridization as sp2, shape क्या मिला? ट्राइगोनल प्लेनार। यहाँ पे एंगल कितना है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के साथ? 120 120 बेटर है, 90 बेटर है? 120 So where will we keep the lone pair in this case? hybrid orbital। Better to keep that in the hybrid orbital. Okay, and जो लोन पेयर है यहाँ पे नहीं है। क्यों यहाँ पे नहीं है? बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड विद दिस ना,
सो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहना पड़ेगा जो इसके साथ साइडवाइज ओवरलैप होगा। लोन पेयर को यहाँ पे रखा तो ये यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ है तो इसके साथ साइडवाइज ओवरलैप हो सकता है क्या? नहीं। सभी लोग अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स, हाईली कॉन्सेप्चुअल। सर या आपका वो पॉइंटर ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। धीरे से करता हूँ। अगर आप लोग लोन पेयर को इस ऑर्बिटल के अंदर रखा, ओके, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहाँ पे रखो, तब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बट इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ साइडवाइज ओवरलैप करना है ना। If the electron is present here, how can it form a sideways overlap? हाँ सर। Not possible, right? From the given molecule, I am already fixing an electron here, which is forming a sideways overlap with this. A sideways overlap is always formed between pure orbitals. So, इस इलेक्ट्रॉन को pure orbital के अंदर रखा मैंने। तन्मय ने कहा, why not keep the lone pair also in the pure orbital? अगर pz के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इस लोन पेयर को मुझे py के अंदर रखना पड़ेगा। आई एम टेकिंग दिस एक्सिस एज py, ओके, और माय रेफरेंस इज दिस इज y, ओके। सो द हाइब्रिडेशन देन विल बिकम sp, मतलब s और px कंबाइन किया, s और px कंबाइन हो करके ऑर्बिटल्स विल बी लाइंग along the x axis. The py is present perpendicular to that x axis which is at an angle of 90 degrees. बॉन्ड पेयर लोन पेयर यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस 90 डिग्रीज पे है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सिव फोर्सेस 120 डिग्रीज पे है। बेटर सिस्टम क्या है? 120 डिग्री वाला। सर सो व्हाई विल आई मेक sp हाइब्रिडाइजेशन इन प्लेस ऑफ sp2? sp2 रखने से फायदा है ना। आपको हमेशा सोचना क्या है, किस हाइब्रिडाइजेशन रखने से उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे sp रखने से मिल रहा है या sp2 रखने से मिल रहा है? sp2. sp2. So why will we make it as sp? एंड आप लोग पहले ये सब भी आपको कुछ डाउट आया, sp3 बोला आप लोग ने। अगर sp3 बोला है तो यू आर नॉट लिविंग एनी ऑर्बिटल टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड विद दिस, बट यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना। हाँ। सो यू नीड टू लिव वन ऑर्बिटल विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। सो sp3 कभी नहीं बोलना है, sp2 होगा या sp होगा। sp नहीं होगा करके अभी यहाँ पे अभी हमने कंफर्म किया। समझ में आया? हाँ सर। एवरीवन? Everyone? So if the lone pair is present in this perpendicular plane, can it jump here resonance में? No. But यहाँ पे आप लोग क्या किया, लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाया ना। हाँ। Can this happen? This can never happen because the lone pair is present in the perpendicular plane but not in the symmetric p orbital. Is this clear? Yes sir. So यहाँ पे रेजोनेटिंग सिस्टम कौन सा है? It is pi alternate pi alternate pi alternate pi. This pi is in resonance with this pi. ये लोन पेयर किसी के साथ रेजोनेंस में है ही नहीं। That lone pair can never participate in resonance. समझ में आया? हाँ सर। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या ड्रॉ करेंगे हम, ये यहाँ पे आएगा। इन दैट प्रोसेस इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके आओ। आई एम ड्रॉइंग ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच आर द मोस्ट स्टेबल वंस। बेंजीन के केस में हमने देखा है ना, बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया बट हमने वो ओमिट कर दिया बिकॉज दे आर नॉट सो स्टेबल। These are the only 2 resonating structures of this molecule and this molecule is called as pyridine. So ये फिर से स्ट्रक्चर वापस कन्वर्ट करने के लिए ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा। Both the structures are आइडेंटिकल interconvertible. स्ट्रक्चर्स होंगे। These are identical structures. So resonance hybrid में आप लोग फाइनली क्या ड्रॉ कर सकते हैं? You can show that as a ring.
You can do this. इसके ऊपर लोन पेयर. Clear? Yes, sir. Analyze this molecule once again after the lecture. What I am doing with the hybridizations. आप लोग के लो different hybridizations बना के अगर sp3 कर रहा हूं तो इसके साथ pi bond बन ही नहीं पाएगा, so sp2 ही रखना पड़ेगा. अगर sp कर रहा हूं तो इसके साथ pi bond हुआ बट कुछ फायदा नहीं है. इस लोन पेयर को यहाँ पे रख के इधर sp हाइब्रिडेशन करके लीनियर करके कुछ फायदा नहीं हुआ, हमें नुकसान ही हुआ ना, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गया. उससे अच्छा ये वाला सिस्टम रखो. ओके Yes, sir. Okay, we will continue in the next lecture. I will give you some more questions. So here the resonating system is pi, alternate, but not lone pair, alternate pi. Clear? हाँ सर. ठीक है then. We'll meet in next lecture. Bye, sir. Thank you. Bye-bye. Bye, sir. Bye-bye. Bye, sir. बाय सर.